আমেথিত উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা আৰু আমেথিত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত আহি পৰিছে নতুন পৰিকল্পনা আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ৰাহুল গান্ধী আমেথিত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আমেথিত উপস্থিত হৈছে স্মৃতি ইৰাণী আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ দুই শক্তিশালী নেতাৰ মাজত হ'ব পাৰে প্ৰতিদ্বন্দিতা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ জনাইছো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীৰ নতুন পৰিকল্পনা ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ মাজতে নতুন পৰিকল্পনা ৰচিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে পিতৃৰ সমষ্টিলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে ৰাহুল গান্ধী পৰাজিত আমেথি জয়ৰ চেষ্টা চলাইছে এইবাৰ ৰাহুলে পুনৰ আমেথিলৈ আহিব পাৰে ৰাহুল গান্ধী আমি জনাইছো ডাঙৰ খবৰ আমেথিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ এফালে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা আৰু আনফালে স্মৃতি ইৰাণীৰ জনসংবাদ আমেথিত প্ৰৱেশ কৰিছে ইতিমধ্যে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাই ৰাহুলৰ প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে আমেথিত বাহৰ পাতিছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে আমেথিত জনসংবাদ অনুষ্ঠান পাতিছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে আৰু আমেথিত 4 দিন স্মৃতি ইৰাণীয়ে কটাব লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ ল'ব 4 দিন কটাব ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাহুল গান্ধীয়ে মাত্ৰ 12 ঘণ্টাই থাকিব আমেথিত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধী নতুন পৰিকল্পনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিগত কিছুদিনৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ এবাৰ আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সন্দৰ্ভত যেহেতু চৰ্চা চলিছে এই চৰ্চাৰ মাজতে আমেথিৰ ৰাজনৈতিক মহল গৰম হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৰম বতাহ বলিছে ৰাহুল গান্ধী ন্যায় যাত্ৰাৰ আজি আমেথিত প্ৰৱেশ কৰাৰ বিপৰীতে একে সময়তে আমেথিত আজিৰে পৰা বাহৰ পাতিছে সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ স্মৃতি ইৰাণীয়ে আৰু ৰাহুল গান্ধী এইবাৰ আমেথিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত বিগত নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীয়ে আমেথি আৰু ৱাইনাডৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কিন্তু স্মৃতি ইৰাণীৰ বিপৰীতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কিন্তু স্মৃতি ইৰাণীয়ে পৰাজিত কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী কিন্তু ৱাইনাডৰ পৰা বিজয়ী হৈছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু এইবাৰ আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে ৰাহুল গান্ধী আমেথিত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই ব্যাপক সহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু আমেথিত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই আমেথিত বাহৰ পাতিছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে বৰ্তমানৰ সাংসদ স্মৃতি ইৰাণীয়ে বাহৰ পাতিছে এফালে ৰাহুল গান্ধীৰ এয়া ন্যায় যাত্ৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আনফালে স্মৃতি ইৰাণীয়ে জনসংবাদ নামেৰে এক বিশেষ অনুষ্ঠান পাতিছে যি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে অৰ্থাৎ দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ মাজত পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব পাৰে কিয়নো এইবাৰ ৰাহুল গান্ধী আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা আমেথিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই ইয়া ব্যাপক সহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য শুনক काशी मंदिर गया बात समझो आप मैं काशी मंदिर गया मैं शिव को मानता हूं मैं काशी मंदिर गया वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया सारे मोबाइल फोन हटा दिए एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया क्यों क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं वो वीडियो ना फैलाए आप देख लेना ये जो मैंने भाषण दिया ना मीडिया में नहीं दिखेगा आपको दिख नहीं सकता 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है जो इस देश को चलाता है जो इस देश को आगे ले जाता है वो सो गया है डर गया है ये देश की सच्चाई है आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा 73% में दम नहीं है होगा कैसे नहीं होगा अदानी ने डिसाइड किया होगा नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है होगा दम नहीं है तुम में अब सुनो 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं किसान बिल वो डिसाइड करते हैं 90 में से आपका कितना 90 में से दलित आदिवासी पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ 90 में से 3 ओबीसी 3 दलित 1 आदिवासी 90 में से 7 आपके और सुनो पता कहां बैठे बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे कहां बैठे छोटे से कमरे में बैठे पीछे और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ ज्यादा बकवास मत करो नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा एसीआर समझते हो
नहीं समझते एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो। अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं, आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा? आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है, और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं, और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते। मैं काशी मंदिर गया, बात समझो आप, मैं काशी मंदिर गया, मैं शिव को मानता हूं, मैं काशी मंदिर गया। वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया? वहां पे पुलिस वालों ने क्या किया? सारे मोबाइल फोन हटा दिए, सारे मोबाइल फोन हटा दिए, एक मोबाइल फोन अंदर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी की शिव मंदिर के अंदर फोटो दिख जाए। उसके बाद वाराणसी में सारा का सारा सेलफोन का जो नेटवर्क है उसको डाउन कर दिया। लोग मतलब वीडियो ले रहे हैं, वो वीडियो ना फैलाएं। आप देख लेना, ये जो मैंने भाषण दिया ना, मीडिया में नहीं दिखेगा, दिख नहीं सकता। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा, 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में। अब सुनो, 90 लोगों में से आर्मी में कितना पैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं, स्वास्थ्य में कितना जाएगा वो डिसाइड करते हैं, किसान बिल वो डिसाइड करते हैं। 90 में से आपका कितना? 90 में से दलित, आदिवासी, पिछड़ों की कितनी भागीदारी मुझे बताओ? 90 में से 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 आदिवासी, 90 में से 7 आपके। और सुनो, पता कहां बैठे? बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, डिफेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठे। कहां बैठे? छोटे से कमरे में बैठे हैं पीछे। और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा। एसीआर समझते हो? नहीं समझते। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट्स की, दलित ब्यूरोक्रेट्स की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो। अब सुनो, राम मंदिर का आपने इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा? मुझे बताओ, अंबानी का चेहरा देखा? अमिताभ बच्चन का देखा? किसी किसान का देखा? किसी मजदूर का देखा? किसी गरीब का देखा? हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने राम मंदिर में चेहरा देखा? क्यों नहीं देखा? किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? तो फिर अब मैं आपको बताता हूं,
आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा, आप कहोगे नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी है। और मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जब पैदा हुए गुजरात में वो जनरल कास्ट के आदमी थे। गुजरात में 2000 में उनकी जात, घाची जात को ओबीसी में डाला गया था। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के हैं। और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के गरीब लोगों की भी देखभाल नहीं करते।